that the real part of that complex number that is equal to 0 is there. It is important that one. So first, if you observe this one, question is whether it is wrong correct. Question बराबर है क्या? 3 plus 2i sin theta upon 1 minus 2 sin y sin theta. Now, so पहला काम अपना 2i sin theta divided by 1 minus 2i sin theta. So first way to make a rationalization means here we have to multiply. When your two complex number are in division, तो अपन क्या करेंगे जो डिवाइड में है उसका कॉन्जुगेट से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये हो गया 1 plus 2i sin theta divided by 1 plus 2i sin theta. Okay, it is a method of doing the division of two complex number. जब भी दो complex number division में है तो हम क्या करेंगे उसके कॉन्जुगेट से दोनों साइड से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे. अब देखो ऐसे करने से न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन तो ये होगा 3 into 1 3 plus 6i sin theta, then afterward 2i sin theta, and then last में कितना मिलेगा plus 2 into 2 4 और ये i into i कितना i square डायरेक्ट लिखो क्या minus 4 sin square theta is there, then divided by ये हमेशा कौन सा फॉर्म में मिलेगा a minus b a plus b. What is the formula for a minus b a plus b? ये हमको मिलेगा a square minus b square. इसलिए 1 का स्क्वायर 1 फार्मूले का माइनस b का स्क्वायर थोड़ा डायरेक्ट करेंगे 2 का स्क्वायर 4 i का स्क्वायर minus 1 माइनस माइनस बिकम प्लस और sin थीटा का स्क्वायर कितना हो गया sin square theta is there. Now after solving you got here 3 यहाँ पे देखो 3 minus 4 sin square theta या फिर चलो पहले की स्टेप बढ़ जाएगी 6i sin theta 2i sin theta it is a 8i sin theta and then minus 4 sin square theta and that is divided by 1 plus 4 sin square theta is there. Okay, now we have to collect some real part and some imaginary part of that one. After collecting what we got here, अब इसको अगर से अपन कलेक्ट करना शुरू करें यहाँ से तो 3 is the real part, minus 4 sin square theta is the real part and it is the imaginary part. So can we write this one as a इसको अपन ऐसे लिखेंगे एक ब्रैकेट में real part means 3 minus 4 sin square theta in one bracket and in the other bracket we can write the imaginary part is nothing but plus और ये दोनों की डिवीजन में बांट के भी दे दो तो ये मैंने बांट के दे दिया 1 plus 4 sin square theta is there. Okay, minus यहाँ पे कितना है तुम्हारा सॉरी प्लस 8 टाइम्स कितना यहाँ पे ऐसा लिखेंगे अपन i into 8 sin theta divided by 1 plus 4 sin square theta is there. So after solving this complex number we got finally the condition it is nothing but this is the real part and this is the imaginary part है ना. जिसको i मल्टीप्लिकेशन में है वो इमेजिनरी पार्ट है और जिसको i मल्टीप्लिकेशन में नहीं है वो रियल पार्ट. अब कंडीशन क्या है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोला प्योरली इमेजिनरी. जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी रहेगा इसका मतलब वो सिर्फ इमेजिनरी है इसका मतलब उसमें रियल पार्ट कितना है 0. ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इसमें अभी कंडीशन है प्योरली इमेजिनरी तो उस टाइम पे रियल पार्ट इक्वल टू 0 और कभी क्वेश्चन ऐसा आया प्योरली रियल तो हम क्या करेंगे इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0 लेके थीटा की वैल्यू निकालेंगे. ये क्वेश्चन अपने को ऐसा भी पूछ सकता दो टाइप से ये सेम क्वेश्चन रहेगा. अब कंडीशन है कि इट इज अ प्योरली इमेजिनरी तो यहां हम रियल पार्ट इक्वल टू 0 करेंगे. अब सेम क्वेश्चन कैसे पूछेगा प्योरली रियल तो क्या करेंगे इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0. अभी क्या है प्योरली इमेजिनरी तो इसका मतलब इसका ये जो रियल पार्ट है that real part equal to 0. तुम्हारा को लिखना था since it is यहाँ पे तो जेई इस वजह से फिर भी बता रहा हूँ since it is what it is a purely imaginary का मतलब है इसका real part of complex number equal to 0. तो इसका real part कितना है बोलो 3 minus 4 sin square theta divided by 1 plus 4 sin square theta that is equal to 0 is there. तो ये पूरा की पूरा 1 plus 4 sin square theta डिवीजन में है 0 के मल्टीप्लिकेशन में आने से पूरा वैनिश हो जाएगा पूरा खत्म हो जाएगा. सिर्फ क्या बच जाएगा 3 minus 4 sin square theta equal to 0 बस इतना बचेगा है ना. अब इसको हम फर्दर अगर से सॉल्व करते हैं
In other, yes, okay. So if we solve further, what we got here? It is nothing but 4 sin square theta is equal to 3 is there, right? ये माइनस का उधर गया तो प्लस का बच गया हो गया और यहाँ पे 3 बच गया तो हमें क्या मिला यहाँ पे फाइनली वी गॉट द कंडीशन sin square theta is equal to 3 by 4 is there, right? Now sin square theta is equal to 3 by 4, but the question asked here, you are interested to find out the value of theta. इसी वजह से मैंने ऑप्शन नहीं दिया यहाँ पे क्योंकि तुमको मालूम नहीं है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आने वाला है, तो अभी इसके लिए थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे sin square theta is equal to 3 by 4 है, तो इसका जो यहाँ पे सॉल्यूशन है इसका सॉल्यूशन कैसा है सी नो. Some students are joining here, wait and watch 1 minute only. Okay, so here the solution is given as sin square theta is equal to 3 by 4, but the question is asked here, what is the value of theta. तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा है इसके ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, देखो अभी सी नो, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन में तुमको नहीं दिया था. इसके ऑप्शंस क्या है देखो, पहले शुरू इसको तुम अगर से सॉल्व करेंगे तो ये कैसा आएगा sin square theta is equal to 3 by 4 can be written as root 3 by 2 का स्क्वायर, ऐसा किसी को मालूम है तो लिख सकते हैं अपन. 3 by 4 is nothing but root 3 by 2 and then ब्रैकेट का स्क्वायर. यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या दिया वाला है वो बता रहा है यहाँ पे. तो ये कितना हो गया root 3 by 2 मतलब ये हो गया तुम्हारा sin कितना पाई बाय 3 का स्क्वायर, मतलब sin स्क्वायर पाई बाय 3 is equal to sin स्क्वायर थीटा इज देयर. अपना आंसर ऐसा आ रहा है यहाँ पर, but you don't know how to write that one. sin square theta is equal to 3 by 4 आ गया, तो sin square theta की वैल्यू आ गई root 3 by 2 ब्रैकेट का स्क्वायर. ना root 3 by 2 ब्रैकेट स्क्वायर मतलब देखो root 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, तो हम अपने को मालूम है root 3 by 2 is nothing but it is sin pi by 3, और sin pi by 3 के स्क्वायर को sin pi by 3 का स्क्वायर लिखे क्या या फिर अपन ने sin स्क्वायर ऑफ pi by 3 लिखे क्या, दोनों का मीनिंग कैसा है सेम. तो इसके सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन दिया वाला है वो क्या है इसके आंसर में ऑब्जेक्टिव में, इसका सॉल्यूशन है थीटा इज इक्वल टू n pi प्लस pi by 3 इज देयर. तो ये इस कारण से कि तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं हुआ. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टी क्या है वो देखो, पहले साइड में बताता कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में प्रॉपर्टी है कि अगर से sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा है तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है थीटा इज इक्वल टू n pi, थीटा इज इक्वल टू n pi then it is nothing but n pi plus or minus alpha is there, n pi plus or minus alpha is there. ये इसका जनरल सॉल्यूशन है. कब अगर से sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो इस प्रकार से थीटा इज इक्वल टू कितना n pi प्लस माइनस अल्फा. तो यहाँ पे कंपेयर करो, थीटा मतलब थीटा है ओके, और यहाँ पे अल्फा के प्लेस पे कितना है पाई बाय 3, तो जनरल सॉल्यूशन क्या मिलेगा थीटा इज इक्वल टू n pi बीच में प्लस और माइनस और अल्फा के प्लेस पे कितना है तुम्हारा पाई बाय 3. तो ऑब्जेक्टिव में ये ऑप्शन दिया वाला है थीटा इज इक्वल टू n pi प्लस और माइनस पाई बाय 3 इज देयर. ओके, इट इज द ऑब्जेक्टिव, इट इज गिवन इन ऑब्जेक्टिव में इसका आंसर ऐसा दिया वाला है. तो ये आंसर कैसा आया इसके आया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी है whenever sin square theta is equal to sin square alpha, या फिर और क्या प्रॉपर्टी है दोनों ही प्रॉपर्टी sin square theta is equal to cos square theta, सॉरी sin square theta is equal to sin square alpha, cos square theta is equal to cos square alpha, tan square theta is equal to, ये तीनों के लिए एक ही सॉल्यूशन है theta is equal to क्या n pi plus or minus alpha is there. So जनरल सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड एज थीटा के प्लेस पे थीटा, n pi के प्लेस पे n pi और अल्फा मतलब कितना है pi by 3 is there. तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होगा तो उस टाइम पे तुमको ये रिजल्ट्स मिलेंगे, then you can use the result in for finding the solution of that one. ऑब्जेक्टिव में जैसा तुम्हारा सॉल्यूशन है उसके हिसाब से. आता काही मुलांनी त्याला असं केलं, ये स्टैंडर्ड है, ऑब्जेक्टिव में ऐसा है, आप कुछ बच्चों ने उसको ऐसा सॉल्व करें. देखो अभी चलो काही मुलांनी त्याला असं सॉल्व केलं कि sin square theta is equal to 3 by 4, it can be written as sin theta is equal to plus or minus under root of 3 by 4 is there. So what is the value of sin theta? Sin theta is equal to plus or minus कितना हो गया root 3 by 4, मतलब कितना हो गया root 3 by 2 is there, है ना. इसका स्क्वायर निकाल के plus or minus under root 3 by 4,
So you can just say that here sin theta is equal to plus or minus root 3 by 2 is there. इसका मतलब sin theta is equal to कितना हो गया? Plus or minus कितना? Sin pi by 3 is there. This form. ऐसा भी अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो ये भी सही, इसके हिसाब से तुम कर सकते हैं. मगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में कैसे दिया था? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस पाई बाय 3 इज देयर. सो करेक्ट आंसर इज दैट वन. तुमको मालूम नहीं था इसलिए ऐसा. तो ऐसे भी तुम एक सॉल्यूशन अंदर से निकाल सकते हो. थीटा की वैल्यू sin थीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट 3 बाय 2. इसके दो सॉल्यूशन मिलेंगे. एक क्या मिलेगा? sin थीटा इज इक्वल टू रूट 3 बाय 2 लेके सॉल्व करो, और एक सॉल्यूशन मिलेगा sin थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3 बाय 2 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं. मगर वो ऑब्जेक्टिव में दिए वाला नहीं है. ऑब्जेक्टिव में जो तुमको जो ऑप्शंस दिए वाले हैं वो ऑप्शंस में ये ऐसा सॉल्यूशन नहीं है. ऑप्शंस में सॉल्यूशन क्या है? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस पाई बाय 3 इज देयर. सो इट इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट वन. और ये आया कहां से? यहां से आया बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी. व्हेनेवर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, देन द जनरल सॉल्यूशन इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस अल्फा इज देयर. So n pi as it is, theta as it is, alpha यहाँ पे कितना है? pi by 3. So you can write here pi by 3. या फिर कभी-कभी ऑप्शंस में ऐसा आ गया दो वैल्यूज के थीटा की दी तब भी तुम निकाल सकते हैं. एक वैल्यू कितना? sin थीटा इज इक्वल टू रूट 3 by 2 लेके, और एक वैल्यू sin थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3 by 2 लेके. तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू रूट 3 by 2 मींस आई थिंक pi by 3 इज देयर. और ये कितना मिलेगा तुमको? माइनस मतलब pi minus pi plus pi by 3, 4 pi by 3 is there. Solution is nothing but एक solution आएगा pi by 3 60, और एक कितना आएगा? माइनस रूट 3 by 2. मतलब साइन कहाँ पे माइनस है? थर्ड में pi plus pi by 3 means 4 pi by 3. ऐसा भी आंसर आ सकता है, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है. सॉल्यूशन तुम ऐसा भी निकाल सकते हैं, मगर यहाँ पे कैसा है देखो अभी लास्ट में. sin square theta is equal to 3 by 4. So you can write here sin theta is equal to root 3 by 2 का square. So we can say that here sin theta is equal to sin pi by 3 bracket का square, which is the reverse sin square theta. So sin pi by 3 का square can be written as sin square of pi by 3. So sin square theta is equal to sin square alpha. यहाँ पे तुमको रीजन देता है यहाँ पे सिस्टमेटिक करने के लिए. तो क्या लिखेंगे अपन? सिंस ये ब्रैकेट में लिख देता तुम्हारे को कि फार्मूला क्या है कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा अगर से है तो दिस इंप्लाइज जनरल सॉल्यूशन कितना है? n पाई प्लस और माइनस अल्फा इज देयर. सो कंपेयर देम. थीटा के प्लेस पे थीटा, n पाई के प्लेस पे n पाई प्लस और माइनस एज इट इज, अल्फा मींस पाई बाय 3, एंड इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट वन. इट इज अगेन अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन कॉम्प्लेक्स नंबर इज देयर. ये अगर से समझ में आया होगा तो एक सेम टाइप का क्वेश्चन अपन इसमें लगाएंगे जो कि और भी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देखो अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल ये टाइप का क्वेश्चन मैं तुमको दूंगा, लेकिन इसको कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं? ठीक है. क्वेश्चन ऐसा है कि इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तो समझ में आ गया सबके. ये ब्रैकेट में लिख के दिया मैंने, इसका सॉल्यूशन क्यों आया बोल के. ठीक है. तो ऑप्शन में ये था n बाय प्लस और माइनस पाई बाय 3. त्यामुळे मी त्या ऑप्शन मध्ये तुम्हाला सांगितलं नाही कारण तुम्हाला हे माहितच नाही. त्यामुळे मी त्याचे ऑप्शन नाही दिलं होतं. डायरेक्ट त्याचा आंसर सांगितलं थीटा इज इक्वल टू n बाय प्लस और माइनस पाई बाय 3. चलो आगे अगला क्वेश्चन लगाएंगे. सेम टाइप का क्वेश्चन लगाएंगे मगर थोड़ा अलग अंदाज से पूछने वाला है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर such that if z is a complex number, it is a complex number such that condition is given that here the condition is such that z minus 1 upon z plus 1 is purely imaginary, is purely imaginary, is purely imaginary, then mod z is equal to, then mod z is equal to, options are 1 0, then afterward minus 1, and then it is the number 2 is there. So these are the options. हाँ प्लस और माइनस 1 दो भी हो सकते हैं. ये थोड़ा सा ऑप्शन में थोड़ा चेंज करेंगे अपन. इट इज नथिंग बट 2 इज देयर. अच्छा ये ऑप्शन से दिए वाले इसमें अपन ने थोड़ा चेंज किया. क्यों करें वो भी बताता हूं तुम्हारे को. अब देखो ये क्वेश्चन है सेम.
If there is a complex number such that z minus 1 upon z plus 1 is purely imaginary, then modulus of z means mod of z is equal to modulus को नहीं पूछा, mod z पूछा उसने, है ना? तो आप देखेंगे इसको कैसा, how to solve such question here. Very same type of question, मतलब अलग अंदाज से थोड़ा पूछे वाला है. वही क्वेश्चन है, ऐसे ही होता है एग्जाम में. सेम क्वेश्चन नहीं आता. अपने को वही क्वेश्चन मगर अलग डिफरेंट अंदाज में पूछता. अपने को ये क्वेश्चन सेम है, अगर से तुम देखेंगे तो कंडीशन क्या है देखो. z minus 1 z plus 1 ये प्योरली इमेजिनरी है. तो सबसे पहले सबको मालूम है z is nothing but individual complex number, can be write this one as a x plus iy minus 1 and x plus iy plus 1 is there, right? In place of z we can write here this one, x plus iy minus 1 and x plus iy plus 1 is there. अब उसके बाद क्या करेंगे, सबको मालूम है दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में है. सो हाउ टू सॉल्व दिस वन, इट इज नथिंग बट टेकिंग अ कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो. तो कॉन्जुगेट क्या है यहाँ पे, इसको पहले अच्छे से लिखेंगे. वी कैन राइट हियर प्रॉपर्ली x minus 1 plus iy divided by x plus 1 plus iy है ना. जरा अच्छे से लिखिए इसको अपन. मतलब रियल पार्ट एक ब्रैकेट में, इमेजिनरी पार्ट अलग, रियल पार्ट एक ब्रैकेट में, इमेजिनरी पार्ट अलग. नाउ मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉन्जुगेट सबको मालूम है, बोर्ड में अच्छे से वाला है. तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, x plus 1 minus iy divided by x plus 1 minus iy is there. Okay, now after solving this what happens now here, माइनस iy से मल्टीप्लाई करने के बाद अब क्या होगा, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन एंड डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है देखो, जेई है, थोड़ा टाइम कम लगेगा तुमको सॉल्व करने के लिए, तो टाइम बचाओ इसमें. प्योरली इमेजिनरी जब बोलता है तो उस टाइम पे ऑब्वियसली रियल पार्ट कितना होगा उसका, 0. मींस वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट ओनली रियल पार्ट. अपने को सिर्फ रियल पार्ट निकालने का है, इमेजिनरी पार्ट की कोई आवश्यकता ही नहीं है. तो रियल पार्ट कैसे निकलेगा, देखो शॉर्टकट बताता हूं. सबसे पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करो. डिनोमिनेटर ऑलवेज इज नथिंग बट a plus b and then a minus b is there. मतलब a plus b a minus b के फॉर्म में. तो ये कैसे आ गया बोलो, इट इज नथिंग बट a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, है ना. a plus b a minus b इट इज नथिंग बट a square minus b square is there. So it is nothing but a square मतलब x plus 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर, देखो b square मतलब i का स्क्वायर minus 1, तो this minus minus become plus and you can write here y square is there. I hope you got that one. ये देखो ये a है, ये a plus b है और ये a minus b है. So a plus b a minus b ये फॉर्मूला देंगे हमें a square minus b square का. इस कारण से ये कितना हो गया, a square मतलब x plus 1 का स्क्वायर, then there is a minus sign is there, but I square की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये y का स्क्वायर. अब न्यूमरेटर में आ जाओ. न्यूमरेटर में क्या होगा, एक्चुअली ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर ये दोनों का, फिर i वाले का. तो एक काम करेंगे अपन, इसमें इमेजिनरी पार्ट कितना है, 0 है. सॉरी रियल पार्ट 0 है. इमेजिनरी प्योरली इमेजिनरी मतलब रियल पार्ट 0 है. तो अपने को सिर्फ क्या निकालना पड़ेगा इसका, रियल पार्ट. तो रियल पार्ट के वास्ते क्या करेंगे, मल्टीप्लाई दिस वन with this one and multiply this one with this one. देखो क्या बोल रहा, x minus 1 x plus 1, right? ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा बोलो, x square x into x square minus 1. then afterward फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस माइनस i into i square मतलब प्लस, और ये कितना हो गया y square इससे. ये हो गया उसका रियल पार्ट. इमेजिनरी पार्ट निकालने की आवश्यकता ही नहीं है. सीएम आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट तुमको निकालने की जरूरत ही नहीं है. तो ये प्योरली इमेजिनरी मतलब इसका रियल पार्ट कितना है, इक्वल टू 0. इसको लेके सॉल्व करो. नहीं आया शायद, आई थिंक सो. यस, समझ लगे मी काय सांगितलं कोणाला. अब इसको तुमको i की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है. अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो तुम निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली तुम सॉल्व कर सकते हैं. देखो यहाँ तक तुम्हारा आ गया. ये तुम्हारा ये प्योरली क्या है तुम्हारा इमेजिनरी. तो ये इसका रियल पार्ट क्या रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, दैट इज इक्वल टू 0. सिर्फ इतने ही पार्ट को इक्वल टू 0 करो और इसको सॉल्व करो. नहीं आया, छोड़ो.
जाऊ द्या, मी पूर्ण तुम्हाला मल्टिप्लिकेशन करून दाखवतो याचा. पण तोच येणार आहे. बघा आपले स्टेप नंबर ऑफ स्टेप कमी होतील. आता बघा याच्यामध्ये वाढतील तुमचे स्टेप. सर्वात पहिले डिनॉमिनेटरचा मल्टिप्लिकेशन x plus 1 x plus 1 x plus 1 का स्क्वायर, देन आफ्टरवर्ड प्लस i का स्क्वायर माइनस में प्लस हो गया और ये y स्क्वायर इज देयर. ये होगा डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में देखो x minus 1 x plus 1 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया x square minus 1, then minus I times y into x minus 1 plus I times y into x plus 1 is there, and lastly plus minus minus and then I into I square, y into y square is there. ये y square by I square के लिए minus minus become plus is there. समझा मल्टीप्लिकेशन. x minus 1 का मल्टीप्लिकेशन x plus 1 के साथ तो क्या होगा ये x square minus 1, then x minus 1 का मल्टीप्लिकेशन minus iy के साथ तो minus iy x minus 1, iy का मल्टीप्लिकेशन x plus 1 के साथ और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस माइनस था i into I square की वैल्यू माइनस तो ये प्लस हो गया और ये y into y कितना हो गया y square इस तरह. अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, कैन यू राइट दिस वन एज जाने दो थोड़े स्टेप पढ़ के, मगर कुछ शॉर्ट भी कर सकते थे. अब क्या हो गया रियल पार्ट एक ब्रैकेट में, तो रियल पार्ट क्या है इसमें x square minus 1 plus y square ये रियल पार्ट प्लस i टाइम्स इमेजिनरी पार्ट एक ब्रैकेट में. इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका प्लस i कॉमन निकाला तो पहले आएगा y into x plus 1 माइनस से देखो i कॉमन अगर से निकाला तो यहाँ पे ये पूरा i कॉमन देखो इमेजिनरी पार्ट को अलग कलर से बताते हैं यहाँ पे हम i into y of x plus 1 ठीक है माइनस y into x minus 1 and then whole divided by ये जो है दोनों की डिवीजन में है, दोनों को बांट के दो. पहले शुरू रियल पार्ट को बांट के देंगे अपन. तो रियल पार्ट क्या आ गया तुम्हारा यहाँ पे, रियल पार्ट कितना आ गया x plus 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट में क्या आ गया x plus 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ये कंडीशन तुमको मैं बोल रहा था यहाँ पे कि अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया. देखो अपना पहले भी ये आया था. अभी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल प्लस इमेजिनरी, मगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है प्योरली इमेजिनरी. इस कारण से इसका ये पूरा इमेजिनरी पार्ट लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका रियल पार्ट लेंगे क्योंकि प्योरली इमेजिनरी है मतलब इसका रियल पार्ट इक्वल टू 0. तो रियल पार्ट इक्वल टू 0 अगर से करें अपन ने सो व्हाट वी गॉट हियर प्योरली इमेजिनरी होने के कारण रियल पार्ट इक्वल टू 0 इज देयर. ओके सो इफ रियल पार्ट इक्वल टू 0, रियल पार्ट अगर इक्वल टू 0 लिए तो क्या की वैल्यू देखो इफ रियल पार्ट इक्वल टू 0 then we got here x square plus y square minus 1 divided by x plus 1 का स्क्वायर plus y का स्क्वायर equal to be 0, and after solving we got the value something like to here क्या मिलेगी देखो वैल्यू इसकी x square plus y square minus 1 ये पूरा इसके 0 का मल्टीप्लिकेशन हो गया 0 हो गया. तो कंडीशन क्या बची थी x square plus y square is equal to 1. This is the condition, but again we cannot get the answer of that one. We are interested to find out modulus of z, है ना. we are interested to find out modulus of z की वैल्यू निकालनी है. तो किसी को अगर से ये दिख रहा होगा x square plus y square, सबसे पहले मेरे को बोलो mod z. What is the value of mod z? Under root of x square plus y square या फिर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये अपना मॉड रहता. कॉम्प्लेक्स नंबर अगर से xy में है तो मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज z. इट इज नथिंग बट मॉड z. तो मॉड z का स्क्वायर कितना हो गया, इट इज नथिंग बट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज देयर. नाउ इफ इट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, mod z का स्क्वायर कितना हो गया, स्क्वायर रूट गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. सो इन प्लेस ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वी कैन राइट हियर mod z का स्क्वायर इज इक्वल टू बी 1. mod z का स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये पूरा कितना हो गया mod z का स्क्वायर. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mod z? mod z इज इक्वल टू एक्चुअल कितना आना चाहिए प्लस माइनस 1,
but actually it is mod is there. Remember, mod is always a positive quantity. mod खुद एक क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए प्लस माइनस वन में से सिर्फ वो कौन सी वैल्यू लेगा, प्लस वाली लेगा, मतलब mod की वैल्यू कितनी आएगी, इट इज नथिंग बट 1 is there. So option number, I think option number A is there. ये बात समझ में आई? कंडीशन कहां तक आई थी, x square plus y square is equal to 1, but we know that mod z is nothing but under root of x square plus y square, squaring on both sides. So mod z का square root गया x square plus y square. Replace that x square plus y square is nothing but mod z का square is equal to 1. But we are interested to find out mod z. So mod z actual में क्या आना चाहिए, plus or minus 1. But mod z is always a positive quantity. So because of that, there is a one answer is correct one. Plus or minus 1 is not correct. Okay. So what is the answer of that one? Same type का question. ये अगर से प्योरली इमेजिनरी है तो इसका रियल पार्ट कितना रहेगा, 0. इसके लिए तुम mod z को निकालेंगे, ठीक है. तो अब इस पे कैसे भी क्वेश्चन आने दो. यही क्वेश्चन उल्टा आ गया, प्योरली रियल, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट, ये पार्ट इक्वल टू 0 करके अपन क्या करेंगे, mod z की वैल्यू निकालेंगे अगर से आया तो, ठीक है. सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन. और उसके अगली तरफ जाएंगे अपन. नेक्स्ट पार्ट क्या है देखो. यस, अब नेक्स्ट पार्ट, अगले पार्ट की तरफ जाएंगे जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर की. From Monday we started we continued 2 batches here. One batch is for board 1. बोर्ड के लिए नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे और जेई के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर कंटिन्यू रहेगा. मतलब 10:45 से 11:20 ये रहेगा बोर्ड, और 11:20 के आगे तुम्हारा 11:30 जो भी है उसके आगे जेई रहेगा, ठीक है. 2 लेक्चर्स होंगे अब मंडे से, फ्रॉम मंडे. सो नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. Representation of complex number. Representation of complex number is there. So we know that how to represent the complex number. Complex number is represented on x-axis and y-axis, and name is nothing but it is stated by the Argand's diagram. कोई भी complex number को अपन, जैसे कि एक नंबर है 4 + 3i, इसको अपन क्या करते हैं, complex number Argand's diagram के हिसाब से x-y axis को दिखाते हैं. इसका मतलब क्या, 4 is present on x-axis and 3 is present on y-axis, मतलब ये होगा रियल एक्सिस और ये होगा इमेजिनरी एक्सिस. तो कहां पे रहेगा, अंदाजे यहाँ पे x का 4, y का 3, ये यहाँ पे 4, 3, ये पॉइंट होगा P of 4, 3. It is the representation of complex number in xy plane is there. Okay, अपन इसको बाद में डिस्कस करेंगे, टाइमिंग के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे अपन. देखो एक पॉइंट कितना मिलेगा, P of 4, 3. तो इसकी तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो रियल पार्ट है इट इज रिप्रेजेंटेड ऑन रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी पार्ट इज प्रेजेंटेड ऑन y एक्सिस, इसीलिए इसको बोलेंगे अपन इमेजिनरी एक्सिस. देखो क्या मतलब है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट अपन x एक्सिस पे डिनोट करते हैं, इसलिए ये एक्सिस को क्या बोलेंगे, रियल एक्सिस, और इमेजिनरी पार्ट इज रिप्रेजेंटेड ऑन y एक्सिस. सो बिकॉज़ ऑफ दैट इट इज सेड टू बी द इमेजिनरी एक्सिस. सो ओके, सो ये द टू एक्सिस इज देयर. y axis is nothing but, x axis is nothing but, x axis को तुम क्या बोलेंगे, रियल एक्सिस, रियल एक्सिस, और y axis को तुम क्या बोलेंगे, इट इज नथिंग बट इट इज योर इमेजिनरी एक्सिस इज देयर, ठीक है. उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने ऐसा सब क्वेश्चन तुमको लगा दिया, देखेंगे इसका कितने लोग इसका आंसर बोल सकते हैं. एक सब क्वेश्चन तुमको लगा दिया मैंने.